Beloved in Christ, praise the Lord and God's many blessings for this gift of a new day. God's many blessings. May God bless you in such a way that you in turn become a blessing for others. This day, I just want to remind us that our faith is something that is more at the stage of discussion and recitation. It has to now shift to action and execution. And how could this happen? It will happen through you and me. How is it that you and I really have this faith, or a house of faith, or a foundation of faith built? It's only possible when we take the first step, and this first step has to be something what Abraham did. Abraham did not become the father of many nations until he himself first came out of his clan and his village, the place where he was born, the place where he lived and had all his relatives. And that is what God wants you and me to do, is to take the first step. Moses could not free the Israelites until he went to the Pharaoh and began a dialogue. The woman bleeding for 12 years was not healed until she decided to touch the edge of Jesus' cloak. So this is something that you and I need to understand. And how we are going to do it, it is through our actions rather than by our recitation of faith through the creed or in any other way. And unfortunately, that is becoming the fashion, that is becoming the trend, that those who are considered religious or those who know God are the people who know the word by heart, who can give references on their tips. But those who cannot are considered as though they are not fully the followers of Jesus Christ. Now, I really do not know how God looks at it. There are different versions. There is the Holy Bible with 66 books, and there is also Apocrypha with the additional books. Now, which one God approves, I do not know. But I'm sure the essence of the Word of God is that we begin to lead a life that is according to His Word and will. And that is what He expects. It has to be based on the Word and His will, of course. But then, not simply consuming the information, but also delivering it, executing it, taking the first step, and then seeing what more God can do. And that will really help us build a strong foundation. Amen. आप सबको जय मसीह की, और आज का दिन शुभ हो, आशीषों से भरा हो, क्योंकि यही परमेश्वर की इच्छा है। उसने इस सुंदर दिन बनाया है। यदि हम इसका सदुपयोग करेंगे, फलदायक पेड़ बनेंगे, खुद आशीष पाएंगे और लोगों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। जो हमारा परमेश्वर के साथ संबंध का आधार है, वो है हमारा विश्वास। आज विश्वास का विचार विमर्श ज़्यादा है, लेकिन उसकी जिस तरीके से हमें उसको एग्जीक्यूट करना चाहिए, वो कहीं दिखाई नहीं देता। लेकिन एक बात याद रखें कि आखिरकार हमारी ईमान का आधार क्या है? क्या वो ये है कि मैंने ईमान के बारे में पढ़ा है, या मैंने ईमान की इमारत अपने जीवन में अनुभवों के द्वारा बनाई है? मैं अपना बताना चाहता हूँ कि मेरे ईमान के बीच कैसे पड़े, या किस प्रकार से मेरा परमेश्वर के साथ संबंध जुड़ गया, और मैं किस तरीके से जो एक राई के दाने के बराबर का जो बीज है ईमान का, वो किस प्रकार से एक बड़ा पेड़ बन गया। मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि मेरी मम्मी का जब जन्म हुआ तो वो अंधी थी, उनको दिखता नहीं था। और मेरी जो ग्रैंड मदर थी, यानी मेरी नानी और मेरे नाना,
वो जगह जगह डॉक्टरों के यहाँ उनको ले लेकर के फिरते थे, क्योंकि उनकी आंखें खुलती नहीं थी। और उन्हीं की एक आंटी थी, यानी मेरी कोई ग्रेट आंटी होंगी, और वो बड़ी प्रार्थना और विश्वास में बहुत ज़्यादा कायम थी। और उन्होंने मेरी नानी को कहा कि तूने सब ट्राई कर लिया, अब ये परमेश्वर का भी तरीका अपना के देख ले, हो सकता है विश्वास के द्वारा ये कार्य, ये आश्चर्यकर्म हो जाए। उन्होंने कहा जब हमने सब कर लिया, क्यों ना एक ये भी ट्राई करके देखें। और क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि एक अंगीठी जलाओ, और एक कढ़ाई ली, और वो बाइबल पढ़ती गई और दुआ करती गई। और वो जो कढ़ाई थी वो बिल्कुल लाल हो गई, लाल। और उन्होंने बगल में पानी रखा था, आशीषित होगा या ऑर्डिनरी पानी था, मुझे मालूम नहीं। और उन्होंने उस पानी को लिया और उस लाल गरम कढ़ाई पे यूँ छींट मारी और कहा यीशु के नाम में चंगी हो जाए। और जैसे ही छौं की आवाज़ हुई, मेरी मम्मी की आंखें खुल गईं। उसके बाद सुरमा दिया और जो भी किया होगा, और मेरी मम्मी ने आखिरी दम तक चश्मा नहीं लगाया। ये परमेश्वर के कार्य हैं, और ये हमारा ईमान बढ़ाते हैं। जब हमारे साथ कुछ होता है बनस्पतिस के, कि हमें ईमान के बारे में कोई परिभाषाएं बताता रहे या हमसे अकीले बुलवाता रहे। आज जिस बात की ज़रूरत है वो यही है कि हम विश्वास को एग्जीक्यूट करें, उसके बारे में कम बताएं, बल्कि उसको लोगों के अंदर ज़्यादा डेवलप करें। जो अब्राहम था वो तब तक राष्ट्रों का पिता नहीं बना जब तक उसने अपने कुनबे को नहीं छोड़ा। मूसा तब तक इज़राइलियों को छुड़ा नहीं पाया जब तक फ़ेरो तक या राजा तक जाकर के बातचीत डायलॉग शुरू नहीं किया। यारस की बेटी तभी ज़िंदा हुई जब यीशु मसीह को बुलाया गया। वो औरत जो 12 साल से पीड़ित थी, वो तब तक चंगी नहीं हुई जब तक उसने प्रभु यीशु के चोगे का कोना नहीं छुआ। परमेश्वर में प्रिय भाइयों बहनों, मेरे जो बताने का मकसद है आज या शेयरिंग का, वो यही है कि हमारे परमेश्वर की जो इमेज हमने बना ली है, कि हम उसके वचन को तो तोते की तरह रट लें और बातों को, और यही आजकल स्टैंडर्ड्स बन गए हैं कि एक अच्छा रिलीजियस आदमी वही जाना जाता है जिसको बाइबल आती है। लेकिन परमेश्वर को जानना अनुभव के आधार पर वो एक अलग इमारत है जिसे कोई ढा नहीं सकता, क्योंकि ईमान के साथ अनुभव भी है। और इसलिए आज मैं चाहता हूँ कि आप अपने ईमान को बढ़ाएं। जब आप पहला कदम लेंगे तो परमेश्वर आपको और प्रतिदिन ऐसे अनुभव देगा जिससे आप जानेंगे कि ये आत्मा जिसमें मैं विश्वास करता हूँ दिखती तो नहीं है लेकिन है तो सही, और ये मुझे मेरी हर स्थिति में बचाती है, मुझे मेरा निर्देश करती है और मुझे हर स्थिति में मेरा साथ देती है। और यही परमेश्वर है। परमेश्वर हम सबको आशीष दे कि हम अपने ईमान में बढ़ें। आमीन।